بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلیاً اما بعد. شاباش. کل حروف کتنے ہیں؟ 29. 29 میں سے سیکھے ہوئے کتنے ہوتے ہیں؟ 19. سیکھے جانے والے حروف کتنے ہیں؟ 10. شاباش. 10 میں سے ہم نے کتنے سیکھے؟ 9. 9. شاباش. کل کتنے سیکھے ہوئے ہیں؟ 28. 28. کل کتنے سیکھے ہوئے؟ شاباش. 28. 28. لیکن آدھے جواب دیتے ہیں تو رہے کتنے؟ 1. 1. شاباش. کل مخارج کتنے ہیں؟ 14. 14. سیکھے ہوئے کتنے ہیں؟ 8. 8. سیکھے جانے والے حروف کتنے ہیں؟ 6. سیکھے جانے والے مخارج 6. صحیح. 6 میں سے ہم نے کتنے سیکھے؟ 5. 5. شاباش. کل کتنے سیکھے ہوئے ہیں؟ 13. بول ہے 13. رہے کتنے؟ 1. 1. ٹھیک. کیوں جگر میرا آپ کو ابتدائی باتیں لگ رہی ہے بیکار ہے اس لیے آپ بعد میں جڑتی ہو؟ رابعہ عائشر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پھر سلام کریں. جی تاسع. جی حضرت. السلام علیکم. آپ ذرا جواب دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت ثامن جی آپ ذرا جواب دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وعلیکم السلام کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو ہمیں وصل کرنا ہے. آپ کہتے ہیں ہوا اللہ. قل ہوا اللہ کہتے ہیں. قل ہوا اللہ کہتے ہیں. قل هو اللہ ہے نا. ہاں. وعلیکم السلام. آپ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون یا اولئک هم المفلحون؟ اولئک هم المفلحون. پھر آپ کیوں فرماتے ہیں وعلیکم السلام؟ وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ثانی عشر جی. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. جی ودیعہ. جی ودیعہ. سلام کا جواب دینا ہے. جی آپ جواب دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن ورحمۃ اللہ کے راہ آپ نے ٹھیک نکالی لیکن وبرکاتہ راہ ٹھیک نہیں نکالی آپ نے. جی بیٹی سابعہ عشر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خامسہ عشر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن آئی نہیں نکالی آپ نے. وعلیکم. ہاں رابعہ عشر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام؟ وعلیکم السلام. حضرت مجھے نہیں پتا. جی اس نے یہ ہے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام یہ ہے صحیح. وعلیکم السلام غلط ہے صحیح نہیں ہے. ایسے جیسے میں نے کہا تھا اولئک هم المفلحون ہم نہیں کہیں گے نا ہم کہیں گے اولئک هم المفلحون. اچھا بعض حضرات کہتے ہیں وعلیکم وہ ایسا نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام لیکن جب تیزی سے پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے وعلیکم السلام. یہ C1 والوں کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن C3 والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ تو مثنیٰ ہوتا ہے مثنیٰ.
حضرت میم پہ پیش ہے اور سین پہ یہ ہے تشدید. جی میم پر پیش نہیں ہے, میم پر ضمہ ہے. سوری, میم پر ضمہ ہے ہاں اور یہ تشدید ہے اس پہ سین پہ. جی بالکل, سین پر تشدید ہے. میں منہ مانگا انعام دوں گا اگر مجھے کوئی ثابت کر دے گا کہ ایپل کی سپیلنگ ہے APPLE ایپل. اے ایپل کی سپیلنگ کیا ہے؟ APPLE. چلیے APPLE ایپل کہیں گے یا APPLE ایپل کہیں گے نا. جی جی لیکن کوئی مائیکل آر مجھے یہ سپیلنگ کر کے دے A2PLE ایپل. حضرت انگلش میں اردو کہاں آئے گا؟ جی جگر میرا, تو عربی میں اردو کیسی آئے گی؟ حضرت میں نے کیا بولا, پیش میں بھول گئی. پیش اور ضمہ. پیش اردو ہے, اردو ورڈ ہے پیش. او آپ کو عربی لگتی ہے؟ مجھے آج تک پتا تھا یہ عربی ہے. ماشاء اللہ, یہ تو بہت مبارک بات ہے کہ یعنی آپ جو ہے عربی میں نئی تھیری بنانا چاہتی ہو, یعنی عربی حروف میں پے بھی ہے. حضرت پتا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. ہاں یہ تو پے ہے نا, پے تو فارسی میں ہے اور اردو میں ہے اور کشمیری میں ہے. عربی میں ضمہ کسرہ اور فتحہ ہے. جی عربی میں ضمہ فتحہ اور کسرہ ہے. اچھا, مطلب زبر زیر پیش نہیں بول سکتے جی کبھی. یہ C3 والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اعراب اور حرکات میں فرق ہے. اعراب الگ چیز اور حرکات الگ چیز ہے. ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے جب ہمارا طالب علم زبر زیر پیش پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے, پھر ہمیں حرکات اور اعراب میں ڈسٹنگوش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور میرا تجربہ ہے کہ جن طلباء کو میں نے ضمہ فتحہ کسرہ پڑھایا ہے ان کو اعراب الگ سے اور حرکت الگ سمجھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے مجھے. اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ پیش زبر زیر چھوڑ دیں, یہ فتحہ ضمہ کسرہ عادت بنائیں, اور یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے جو یاد نہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ جی حضرت. تو یہ وعلیکم السلام ہے, وعلیکم نہیں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چلیے میں جگر حضرت ایک عرض ہے اجازت؟ جی فرمائیں. جی جب یہ مونس جواب دیتی ہے نا سلام کا, اس میں کا اور کی کا خیال رکھنا ہے. اس پر ہمیں گزشتہ سال کئی روز تک بحث ہوئی ہے. میرا ایک شاگرد ہے ڈاکٹر رفیق صاحب, تو پھر میں ڈھونڈتا رہا یہ کہ ایسا کوئی ثبوت مل جائے کہ ہم اپنے صیغے سے سلام کریں یا جواب دیں. تو اللہ پاک نے میری مدد فرمائی ہے. بدائی و ثنائی میں باضابطہ عبارت ہے, وہاں اپنے صیغے سے سلام ہے. یہ میں نے اس سے پہلے سمجھایا ہوا ہے کہ یہ جو ہم ہر ایک کو جواب دیتے ہیں جمع کے ساتھ, کیونکہ یہ عجم ہے اور عجم میں ظاہر بات ہے ہر ایک کی کنٹرول میں تو نہیں آئے گا نا, لیکن سنت پر عمل کرنا ہے. اس بنیاد پر یہ چل پڑا اور ٹھیک ہے, عوام کے لیے ٹھیک ہے. اگر وعلیکم مطلب جواب جمع میں ہم دیں گے اور مذکر میں دیں گے تو ٹھیک ہے. اس کی ہم تعویل ایسے کرتے ہیں کہ مطلب مرد ہے, اگر عورت اگر مرد ہے تب تو جمع ٹھیک ہے, اور اگر ایک ہی مرد ہے تو تعظیم کے لیے جمع کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں, اور عورت ہے تو وہاں پر بھی مذکر جمع ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں. تو اس سب کو ملا کر ہم کہیں گے کہ مطلب ایک سے زیادہ کو مذکر کو مؤنث کو علیکم کے ساتھ جواب دینا ٹھیک ہے. لیکن یہ صرف اس لیے ہے کہ عجم میں اس چیز کا مسئلہ ہے کہ عربی زبان نہیں ہوگی تو پھر سنت سے محرومی ہوگی, ورنہ اپنے صیغے سے سلام دیا جانا چاہیے. مجھے جب کوئی جو ہے لڑکی تو مجھے سلام نہیں کر پائے گی الحمدللہ راستے میں کہیں پر بھی, تو یہ تو سلام کرنا ٹھیک نہیں ہے. بس ایک عورت ایک مرد سے ضرورت کی حد میں رہ کر بات کرے
باقی اس کے علاوہ نہیں. اسی لیے ایک جوان عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ مرد کو سلام نہ کرے. اللہ کی ضرورت ہو، ظاہر ہے جب ضرورت میں بات کر رہے ہیں تو سلام کرنا بھی ہے. تو عموماً جی سلام نہیں کرنا چاہیے. ایک لڑکا وہ لڑکی کو سلام نہ کرے، ایک لڑکی لڑکے کو سلام نہ کرے. تو لیکن اگر کوئی عورت ہے، بڑی ہے، عمر رسیدہ ہے، تو مجھے سلام کرے گی تو میں اس کو السلام علیکم کہوں گا. اور اگر وہ مجھے سلام کرے گی تو میں جواب دوں میں وعلیکم السلام کہوں گا. تو اس طرح سے ثبوت مل گیا ہے. بدائع و ثناء میں عبارت ہے جو اپنے صیغے کے ساتھ سلام اور سلام کا جواب لکھا ہوا ہے. جی سمجھ گئے نا آپ؟ شکریہ حضرت، شکریہ. ہاں، تو میں نے سلام اس لیے کرایا تاکہ سلام ٹھیک ہو جائے اور مخرج نکل جائے. جی حضرت. میں 2007 اکتوبر میں اسلام آباد کے ایک ادارے میں گیا تھا پڑھانے کے لیے، اسکول میں. تو اب 600 طلبہ ہیں تو آئین میں مجھے کیسے نکل جائے گی ان طلبہ کو، مجھے بڑی دقت ہو گئی شروع میں. تو اس اسکول میں پرائر پڑھتے تھے اور پرائر پڑھ کر پھر پوری بلڈنگ کا ایک ہی دروازہ تھا، مین دروازہ. تو میں دروازے پر بیٹھ کے بچوں کو سلام کرتا تھا. تو ظاہر بات ہے یا تو ان کو سلام کرنا ہے یا جواب دینا ہے. سلام کریں تب بھی آئین آئے گی اور جواب دیں تب بھی آئین آئے گی. اور جو بچہ یا بچی سلام نہیں مطلب آئین نہیں نکالتا تھا تو میں اس کو پیچھے بھیج دیتا تھا دوبارہ. اب ظاہر بات ہے کوئی طالب علم یہ 200-300 طلبہ پیچھے جائے تو ظاہر بات ہے یہ تو ایک ہے نا، ایک مسئلہ ہے. بالکل. اس لیے ہر کوئی بچہ جب مجھے سلام کرتا تھا نا تو وہ جب تک اس کو 500 تک باری آتی تھی تو 500 مرتبہ پریکٹس کرتا تھا، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. تو اللہ کا شکر ہے میں 2-3 دن میں کامیاب ہو گیا اور پورے سکول میں آئین نکل گئی. ماشاء اللہ. تو ایسے میں آپ تو ماشاءاللہ بڑے ہیں اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ چھوٹے ہوتے تو آپ کو ٹھیک ہوتا، آپ بڑے ہیں تو آپ کو ٹھیک نہیں ہوگا. یہ محض ایک وسوسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہاں پر ہماری تسلی کے لیے قرآن مقدس کی آیت کافی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ ہماری تسلی کے لیے کافی ہے. مجھے واقع یاد ہے میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، تھوڑا کچھ وقت لگ جائے گا، آپ برداشت فرمائیں. اللہ شاید ہمارے لیے ہدایت فرما دیں گے، لکھ دیں گے. تو کشمیر کے سب سے پہلے جو نسلاً اور اصلاً کشمیر کے نہیں تھے، وہ تو پار کے تھے. اور یہاں کوکرناگ میں سب سے پہلے ادارہ قائم کیا ہے انوار العلوم کے نام سے. انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے یاد میں انوار العلوم کے نام سے مدرسہ قائم کیا ہے. کوکرناگ سے اوپر دندی پورہ. حافظ چراغ الدین صاحب. جی. تو کشمیر کے سب سے زمانے فترت میں کہتا ہوں اس کو، حضرت یوسف شاہ رحمہ اللہ کے بعد جو ہے سب سے پہلے ادارہ قائم کیا ہے اور بڑے غیرت مند تھے. اگر میں اس کے آپ کو سوانے بتاؤں گا نا تو ہفتہ بھی چلا جائے گا، تو 10 منٹ میں کیا بولوں گا میں. اور بہت زیادہ مطلب ماہر تھے اور اللہ کے بڑے ولی تھے. آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ حضرت کو یہ پتا تھا کہ کون سا حرف قرآن کریم میں کتنی مرتبہ ہے. آپ کو اندازہ ہے کون سی صورت میں کون سا حرف کتنی مرتبہ ہے؟ یہ حضرت کو معلوم تھا. تو بتانا مجھے یہ کہ حضرت کے ایک شاگرد تھے، اس کا نام تھا حضرت مولانا امین صاحب، دندی پورہ کے ہی تھے. ایک بیٹا مفتی ہے اور ایک بیٹا حافظ ہے. تو اس نے 53 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے. 53 سال کی عمر میں. تو آپ کو اندازہ ہے نا 53 سال کی عمر میں الف با پڑھنا شروع کیا، الف با. اس کے بعد قرآن پاک بھی پڑھ لیا، ناظرہ بھی پڑھ لیا، حفظ بھی کیا ہے اور پھر عالمیت بھی کی ہے. ماشاءاللہ. اور حضرت حافظ چراغ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے.
अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन लोगों ने ये पढ़ा है हजरत का या सुना है तो उनको ये पता चलेगा कि हजरत क्या थे, हजरत के अहम शागिर्दों में थे। तो अर्ज मुझे करना है कि जब उनसे हो सका तो हमसे क्यों नहीं हो सकेगा, हमसे क्यों नहीं हो सकेगा। तो नकद इसका फायदा ये है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं हमारी खामी रही भी, लेकिन हम तालिब इल्म में शामिल हो जाएंगे और अल्लाह पाक वो खामियां माफ फरमाएंगे। मुस्नद अहमद में इंशाअल्लाह। अल माहिर बिल कुरान मअ सफरतिल बररा व मन यततअ फिल कुरान फलहु अजरान। जो शख्स कुरान करीम का माहिर है, अल्लाह पाक क़यामत के मैदान में उसको सफर बरारा, ये अजीम एक तबका है मलाइका का, अल्लाह पाक उसे अवाम में उठाकर उनमें बिठा देंगे अजमत के लिए, आप इनके साथ बैठ जाओ। और जो कुरान करीम को तोतले के साथ पढ़ता है या ता यानी रुक रुक के पढ़ता है, ठहर ठहर के पढ़ता है, रिपीट कर करके पढ़ता है। जाहिर बात जब तालिब इल्म पढ़ता है तो वो पहली मरतबा बड़े गलत हो जाएगा, फिर दोबारा पढ़ेगा, फिर 6 मरतबा पढ़ेगा, फिर 4 मरतबा पढ़ेगा। तो रुक रुक के पढ़ेगा, ठहर ठहर के पढ़ेगा, रिपीट कर करके पढ़ेगा। तो अल्लाह पाक ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसको पढ़ते हुए गलती भी हो जाएगी, उस गलती पर कोई गुनाह नहीं है, अलबत्ता पढ़ने में 2 नेकियों का सवाब है। यानी एक तो इसको कुरान करीम की तिलावत का सवाब अलग, और फिर कुरान करीम सीखने का सवाब अलग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई तालिब इल्म जो है कुरान करीम यानी उलूम इस्लामिया, नियत सही होनी चाहिए, उलूम इस्लामिया पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते इसका इंतकाल होता है, तो अल्लाह पाक कब्र में उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर करते जो उसको उलूम इस्लामिया पढ़ाते हैं, और उसका फिर शुमार उलमा में होता है क़यामत के रोज। इसलिए हजरत कारी ना दारुल देवबंद के जो मुहतमिम साहब थे, हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो 17 साल की उम्र में दारुल देवबंद के मुहतमिम बन गए। आप समझ रहे हैं बात, 17 साल की उम्र में दारुल देवबंद के मुहतमिम बन गए। हजरत कासिम अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैह के नवासे थे, बेटी के बेटे, और 60 साल तक दारुल देवबंद के मुहतमिम रहे, 60 साल। लेकिन 60 साल में हजरत के सवाने में आता है कभी भी ये नहीं कहा कि मैं दारुल का मुहतमिम हूँ, फरमाते मैं दारुल का तालिब इल्म हूँ। किसी ने पूछा हजरत आप तो एक तो इतनी बड़ी आलिम हैं और आपके शागिर्दों के शागिर्द हैं और आपके शागिर्द यहाँ पर असातिज़ा भी हैं, आप फिर भी कहते हैं मैं दारुल का तालिब इल्म हूँ। फरमाते हैं मैं तालिब इल्म की फजीलत को हासिल करने के लिए अपने आप को तलबा में ही शुमार करना चाहता हूँ। तो लिहाजा ये अल्लाह पाक का फजल है, करम है, एहसान है, और अल्लाह पाक का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इस तबके के लिए चुन लिया है। सही बात सबसे है। बड़ी नियामत है ये। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें नवाजेंगे। तो मैंने एक बात अर्ज की थी कि आप जो भी हर्फ आप पढ़ेंगे ये आपके ज़हन में होना चाहिए। जब तक ये हर्फ हम ठीक नहीं निकालेंगे तब तक हमें पढ़ना नहीं है, हमें आगे ही बढ़ना नहीं है। आप सलाम को तो करना ही है, आगे कोशिश होनी चाहिए। जब तक मुझे आयन नहीं निकल जाएगी तब तक मैं सलाम छोड़ूंगा नहीं, मैं बोलता रहूंगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने तो हमारी तसल्ली के लिए फरमाया है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। ये तो अल्लाह पाक ने फरमा के रख दिया है, लिहाजा हमें इसका हम ख्याल रखेंगे, इंशाअल्लाह फायदा होगा। इंशाअल्लाह। हजरत मैं सुन ही नहीं रही हूँ। नहीं है, मैंने तो बोला ही नहीं था कुछ, तो आप क्या सुनती? अब तो सुन रही ना? अब सुन। जी हाँ, इन हरूफ को फिर पढ़ें जी। खामिस व इशरून सा नहीं, तासे
جی حضرت آسف. کس کس حرف کو؟ ہاں جی حضرت کس کس حرف کو؟ سب حروف کو. یہ جو لکھے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عین نہیں نہیں یہ ہے نا یہ جہاں پر یہ رکھا ہوا ہے سب حروف کو بڑے اکٹھے. کہاں حضرت سکرین نہیں شیئر نہیں ہوئی. کہیں نہیں ہے. فکر نہیں شیئر ہے سکرین نہیں شیئر ہے. نہ نہیں نہیں حضرت. حضرت. اچھا ایک منٹ ٹھہرے پھر ٹھہرے. اب ہو گیا شیئر. جی 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 جی. ہاں یہ جگہ پڑھ لیں. نہیں حضرت ابھی نہیں. ہاں نہیں ہو گیا ہو گیا ہو گیا نا. ہو گیا. ہاں ہو گیا. چلیے پڑھ لیجیے. ہاں اب آیا. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا اور لمبا اور لمبا اور لمبا. تا ہوں ثا جیم ح خا دال ذال را زا سین شین صاد وعد نہ 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 نہ. آپ تو توجہ نہیں دے رہے ہیں. یہ حرف تو ہم نے پڑھ ہی نہیں لیا. آپ نے کیسے پڑھا اسے؟ یہ میں نے رکھا یہاں پر. میں نے کرسر کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایرو جہاں ہے وہاں پر پڑھیے. پھر سین شین صاد قا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا جی بیٹی نہیں خامس و عشرون آپ پڑھیں. بسم نہیں چھوڑے اللہ چھوڑے چھوڑے چھوڑے. الرحمن حضرت سامن جی آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد پھر پڑھیے پھر پڑھیے پھر پڑھیے. صاد دانتوں کو ملائیے. صاد ہاں طا ظا عین اور لمبا. غین نہ عین نہ عین. پھر پڑھیے. عین عین. عین ہاں غی غوی ہے. غوی غی غوی. غی فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا ٹھیک. اب حضرت جی خامس و عشرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم حا خا خو خا دال ذال
را زا سین شین صاد طا ظا عین غین 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 فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا ہاں بیٹی سابعہ عشر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ اسے پھر پڑھیں ہا ہا پھر پڑھیں. ہا نہ ہا قطعاً نہیں مانوں گا. ہا شاباش. آدھے کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ آدھے کو کس کو؟ ہاف 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 کہتے ہیں یا ہاف کہتے ہیں؟ ہا وہی ہے یہ. ہاں چلیے پڑھیے جگر پڑھیے. ہا حمزہ یا ہاں ماشاء اللہ. چلیں جگر ثانی جی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جوائن کریں. الف با تا ثا جیم ہا خا دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین. ایک منٹ اسے پھر پڑھیں. ضا ہاں ضا آگے چلیے. عین ہاں غین شاباش. فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا ماشاء اللہ. چیلنج جگر میرا خامسہ عشر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا
جیم فا خا دال دال را زال سین شین صاد طا ظا عین ایک منٹ پھر پڑھیں اس کو. عین ہاں آئی نہیں, آئی عین ہاں جی عین یہ آئی اس میں لمبا نہیں ہونا چاہیے, یہ تو شارٹ ہونا چاہیے. آئی عین عین ہاں عین عین ٹھیک عین ہاں فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا چلے بیٹی رابعہ اشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا, سکرین ہی غائب ہو گیا. ہاں تا, سکرین غائب ہو گیا, میں پھر بھی پڑھوں گی. تا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد طا ظا عین نہیں اسے پھر پڑھیں. عین, یہ جیسے نیچے آواز جاتی ہے. جانے چاہیے نا. سکرین آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ اب نظر آ رہا ہے حضرت. اب نظر آ رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے جی. دیکھ میں یہ جو یہ تو کے بعد یہ والا حرف ہے, اس کو پھر پڑھیں. دو پھر دو پڑھیں دو چلیے آگے. دو عین عین غین فا قاف قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک, کوئی ساتھی رہ تو نہیں گیا؟ سکرین پھر سے گیا حضرت. ہاں سکرین پھر سے گیا. اب آدھا آ رہا ہے, آدھا اس کو تھوڑا لیفٹ, بس اب ٹھیک ہے حضرت. اب آیا؟ جی حضرت اب ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہے, یہ تو پورا ہونا چاہیے. میں تو دو آ رہے ہیں, دونوں آ رہے ہیں. دونوں آ رہے ہیں نا آپ کو؟ ہاں یہ اس بیٹی میں ہی پھر پتہ نہیں کیا ہوا جی ہے. ڈبل آ رہا ہے. ڈبل آ رہا ہے نا. حضرت ایک سکرین کے نیچے دوسرا سکرین ہے, ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے. نہ ان کو ان کو وہ تھوڑا نا وہ رکھنا ہے. ڈبل آ رہے ہیں حضرت, دو پیج آ رہے ہیں. دو تھا موبائل دو آتے دونوں مسئلہ نیچے وہیں آوا پہنچو آپ کو پہنچنا کوئی ٹھیک آ تو گیا نا. ہاں حضرت میں چھوٹے چھوٹے کچھ ہے, چھوٹے چھوٹے. چلے ٹھیک ہے, رہنے دیجیے, ہونے دیجیے. ٹھیک ہے رفت کے موبائل میں پرابلم ہے. ہاں اب آیا بیٹی آپ کو؟ حضرت میں بولوں گی تو یہ بولے گی رفت کے موبائل. چلیں ٹھیک ہے جی حضرت ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. چلیے یہ تو ہو گئے ہمارے 28 حروف نا. جی ہاں اب ایک حرف ہے, توجہ سے سنیں, توجہ سے سنیں. ہاں زبان کے 3 حصے ہیں. زبان کے 3 حصے. 3 حصے. ایک تو
फ्रंट है और मिडिल है और एंड है। फ्रंट को हम कहते हैं तरफे लिसान, बल्कि मखार के लिहाज से हम 4 हिस्से कहेंगे। एक तो टिप ऑफ द टंग है ना जी जी हाँ, उसको हम कहते हैं जी। नोके जुबान, जुबान की नोक। नून हाँ, दूसरा है फ्रंट ऑफ द टंग, उसे कहते हैं तरफे लिसान। तरफे आपको मेरी शक्ल दिख रही है? जी 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 हजरत हजरत मेरी शक्ल दिख रही है आपको? जी 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 हजरत हाँ, ये है, ये टिप ये टिप है। दूसरा फ्रंट ऑफ द टंग, ये है ना, ये आपको मेरे जो इशारा दिख रहा है, हाँ जी जी हजरत हजरत हाँ, इन्हें कहते हैं अनयाब, इन्हें कहते हैं अनयाब। अनिया हाँ हजरत Nice. स्पेलिंग हाँ Spelling. नोकीला था, नोकीला। जी 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 4 दांत ऊपर। अनयाब। अनयाब ये हर गोश्त खाने वाले ज़ी रूह के ये दांत होते हैं, हर सही। गोश्त खाने वाले। जी तो और जो ज़ी रूह गोश्त नहीं खाता है उसके ये दांत नहीं होते हैं। जी जी अगले 4 दांतों को, जो अगले 4 दांत हैं उनको सनाया कहती है, आपको मालूम है? इन्हें सनाया कहते हैं, सनाया। सुनना, मेरा मूड ऐसा नहीं रहेगा अगर मैंने किसी से सनाया बोलते हुए देखा ना सनाया, तो मेरा मूड ऐसा नहीं होगा। अच्छा, उस्ताद की डांट से किसी को इंसल्ट महसूस नहीं होनी चाहिए, याद रखो, ये बड़ा ड्रॉबैक है तालिब को, जिसको उस्ताद की डांट से इंसल्ट महसूस होती है। हाँ, ये मगरिब ने मुझे सिखाया। अल्लाह का शुक्र है, अगर चौराहे पर मुझे अपना उस्ताद आज भी डांटेगा, मुझे फख्र होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 1% मेरे दिल में नहीं आएगा कि मुझे चौराहे पर क्यों डांटा। मेरे साथ मेरे सैकड़ों शागिर्द की जमात क्यों ना हो और मेरे उस्ताद मुझे डांटेंगे, मुझे कतन 1% भी ये जहन में नहीं आएगा कि मुझे मेरे 100 शागिर्दों के सामने मेरे उस्ताद ने मुझे क्यों डांटा। तो फिर उस्ताद ही कैसा, जिसका हम आर्ग्यू करेंगे, वो उस्ताद ही नहीं रहा। उस्ताद की बात को हम एडिट नहीं कर सकते, उस्ताद की बात को तो बस जैसा है वैसा ही रहना है, तभी फायदा होता है। तो बहरहाल अगले 4 दांतों को सनाया कहते हैं ना, जी सनाया सनाया। हाँ, सनाया और सनाया के ऊपर नीचे दाएं बाएं और बाएं। 4 दांत है। सनाया के जी। ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 दांत, बाएं ठीक है ना? जी उन्हें रुबाइयात कहते हैं, रुबाइयात, रुबाइयात, बिल्कुल। वो ये 2 दांत हैं, मेरी थोड़े से बड़े हैं, आप देख ले, ये और ये 2 दांत हैं, और फिर इनके सामने ये 2 दांत हैं, ये और ये। वीडियो हाँ, तो इन्हें कहते हैं रुबाइयात। और रुबाइयात के ऊपर नीचे दाएं बाएं और 4 दांत हैं, इन्हें कहते हैं अनयाब, अनियाब है ना? जी जी तो सनाया कितने हैं? 4। चार रुबाइयात कितने हैं? 4। 4 4 और 4 हो गए ना 9। 8 हो गए। अच्छा 8 हो गए, 8 जी 8 हो गए। और फिर अनियाब भी कितने हैं? 4 4। 8 और 4 कितने हो गए? 12 12 कितने किस्में हो गई? 3 तीन 3। कितने हो गई? कितने दांत हो गए? 12 12 अच्छा, अनियाब के दाएं बाएं ऊपर नीचे और 4 दांत है, उन्हें कहते हैं ज़वाहिक। जवाहिक ज़वाहिक, ज़वाहिक का जम है। तो असल में जब आदमी स्माइल करता है, जब आदमी तबस्सुम करता है, तो उसके होंठ खुलते हैं, तो तबस्सुम के वक्त वो दांत दिखाई देते हैं। जब ऐसे हमने हंसा, ऐसे हंसा,
तो अमूमन जो होंठ है वो उस वक्त जब आदमी हंसता है, एक हुआ कहा खिलखिला कर हंसना, नहीं तबस्सुम स्माइल जब करता है, तो उस वक्त में उसको सनाया, रुबाइया, अनयाब और जवाहिक वहां तक मुंह ना होंठ खुल जाते हैं, ऐसे ऐसे वहां तक होंठ खुल जाते हैं। तो हंसने में जो दांत दिखाई देंगे उनको जवाहिक कहते हैं, जवाहिक। जाहिक का यज़हक है ना हंसना। हाँ, कितने दांत हो गए? 16। 16 जवाहिक के दाएं बाएं ऊपर नीचे और 12 दांत हैं, 3 दांत, इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3, हो गए ना 12। जी हाँ, इन्हें कहते हैं तवाहिन, इन्हें कहते हैं तवाहिन। 16 और 12 कितने हो गए? 28। 28 दांत हैं। अब तवाहिन, तवाहिन तहना 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 या तहानो के माने पीसना, पीसना, इसलिए ताहिना कहते हैं चक्की को, ग्रेटस्टन ताहिना या ग्रेटिंग अचलन ताहिना, आदनो सत मशीन या और अचलन ताहिना, ठीक है, वो पीसती है। हाँ, तो ये दांत चबाने में काम आते हैं, चबाने में, इसलिए इनको कहते हैं तवाहिन। अब तवाहिन के दाएं बाएं ऊपर नीचे और 4 दांत हैं, इन्हें कहते हैं नवाजिज। नवाजिज नवाजिज, नाजिजा की जमा है, हो गए 32। हो गए 32। ये नवाजिज जो है ये टीनेज के बाद आ जाते हैं, तकरीबन 20 साल के आसपास उम्र में ये आ जाते हैं, 20, 21, 22 इसी में आ जाते हैं ये। और ये आदमी को जहां जिन इन दांतों से जब कोई चीज ना टूटे तो उसको उन्हीं दांत से तोड़ देते हैं। जब अखरोट होता है थोड़ा सा सख्त होता है उसको उधर ही लेकर तोड़ देते हैं, इसलिए उनको नवाजिज कहते हैं। इसलिए प्यारे आका ने फरमाया अद्दूहा बिन नवाजिज अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन। अद्दूहा बिन नवाजिज, आप पर लाजिम है मेरे और खुलफाए राशिदीन का तरीका, ये आप पर लाजिम है। अद्दूहा बिन नवाजिज, अपने नवाजिज उन पीछे वाले दांतों के साथ इस सुन्नत को पकड़ के रखो तो हिदायत पाओगे। तो नवाजिज कहते हैं उन्हें। तो शाबाश, कितने दांत हो गए? 32। पहले कौन से दांत है? 4। ये हजरत जी ये फरमाइए जो आप नवाजिज कहते हैं ना 4, ये कहाँ का? ये एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक ऊपर, एक ऊपर, यही 4 है ये? बिल्कुल लास्ट में, मतलब लास्ट में एक दांत है ये, है ना? बिल्कुल, ये नहीं ऊपर वाले जबड़े में 2 दांत हैं, इधर एक इधर एक, और नीचे वाले जबड़े में 2 दांत हैं, इधर एक इधर एक। हाँ ठीक है ना? ठीक है। नवाजिज कहते हैं। शाबाश जिगर। मैं कह रहा हूं जो पहली किस्म दांतों के वो क्या है? सनाया। सनाया के साथ मुत्तसिल और 4 दांत है, वो क्या है? रुबाइया। ये सालिस व इश्रून आया है क्या? रुबाइया सालिस व इश्रून नहीं जी, ये सानी आशर जिम्मेदार हैं। हाँ, तो शाबाश, पहली किस्म है सनाया, दूसरी किस्म क्या है? रुबाइया। तीसरी किस्म क्या है? अनयाब। चौथी किस्म क्या है? ज़वाहिक। शाबाश। पांचवी किस्म क्या है? तवाहिन। तवाहिन। छठी किस्म क्या है? नवाजिज। नवाजिज। शाबाश। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे इंसान के मुंह में कितने किस्म के दांत हैं, आप क्या बोलेंगे? हम कहेंगे 6। शाबाश। तासिम,
छह किस्म के दांत 6 किस्म के दांत हैं। शाबाश। पहली किस्म का नाम क्या है? सनाया सनाया सनाया। छठी किस्म का नाम क्या है? जी नवाजिज नवाज। नवाजिज नवाज। जी तासिया। पहली किस्म के नाम क्या है? सनाया और आखिरी छठी किस्म का नाम क्या है? नवाजिज नवाजिज नवाजिज। ठीक है ना जी। तीसरी किस्म का नाम क्या है? तीसरी का अनियाब अनियाब जवाहिर अनियाब। शाबाश। अनियाब पांचवी किस्म का नाम क्या है? तवाजिन तवाहिन तवाहिन। अच्छा, अगर आपसे कोई सवाल करे कि मुंह में जो 6 किस्म के नाम, जो 6 किस्म के दांत हैं, इनमें सबसे ज्यादा कौन से दांत हैं? इसमें तवाहिन इनमें है तवाहिन दादा तवाहिन। शाबाश। 12 तवाहिन। तवाहिन कितने दांत हैं? 12 12 12 है ना। अच्छा, 12 है ये, 12 है ये, 12 है ये। हाँ, तो बाकी किस्म कितनी है? बाकी कितनी किस्म रह गई? 5 किस्म 5 में हर किस्म में कितने कितने दांत हैं? 4 चार दांत है ना। 20 तो 4 5 आर 20 20 प्लस 12 कितने हो गए? 32 32। ये आ गए 32 दांतों का आ गए हिसाब। ठीक है ना। जी हजरत जी हाँ, मुझे याद नहीं कराना था आपको। चलो, एक इल्मी बात मिल जाएगी, अच्छा है। मुझे असल बताना आपको जुबान के हिस्से। तो एक तो ये टिप ऑफ द टंग है, टिप ऑफ द टंग। जी ठीक है ना। हाँ मुंह की जुबान दूसरा हो गया फ्रंट ऑफ द टंग। जब आप ठीक नॉर्मल जुबान को रखते हैं, नॉर्मल जुबान को रखते हैं ना, बाहर ऐसे आप नहीं बोल सकते जुबान कौन से जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में। ये तो बीच नीचे में है। वाले जबड़े में नीचे जुबान। ओ बेटी राबिया आशर, ऊपर वाले जी हजरत। आपकी जुबान ऊपर वाले जबड़े में है या नीचे वाले जबड़े में? नीचे वाले नीचे वाले जबड़े के नीचे वाले जबड़े में फंसी है पता है। जी हजरत सामिन जी। नीचे वाले है ना, फिर खाना भी ऊपर से ही खाते हैं नीचे। जी तासिम। नीचे वाले जबड़े में लग रही है, अटैच उसी के साथ साबिया इसका एक आशर। साथ उसी के साथ साबिया आशर कहाँ गई ये? सानी। जी हजरत। आपकी जुबान नीचे नीचे वाले जबड़े में या ऊपर वाले जबड़े में? नीचे शायद। हाँ? हमने सबको कंफ्यूज कराया। नीचे ही है अब हमें देखा ही नीचे हम है। शक में पड़ गए सब। अल्लाह के बंदे, हजरत हम तो खाना जब खाते हैं वो जुबान के ऊपर से खाते हैं या नीचे से खाते हैं? ऊपर से खाते तो नीचे चली गई जबान। जब जुबान के ऊपर से हम खाना खाते हैं तो जाहिर बात है, तो जुबान तो नीचे वाले जबड़े में होगी ना। हाँ सही। अगर जुबान ऊपर वाले जबड़े में होगी तो फिर नीचे से जुबान, फिर हम तो खाना जुबान की नीचे से खाते हैं ना। आपको क्लियर हो गया? जी हजरत अगर आपको ये देखना है कि तालिब इल्म को अपने बात पर उसको कॉन्फिडेंस है या नहीं, एतमाद है या नहीं, हाँ। उसको सवालिया अंदाज अपनाइए आप। अगर वो डगमगा गया समझो उसको मलका नहीं है, अगर वो डगमगाया नहीं समझो उसको मलका है। इसका मलका समझे ना आप? जी हजरत महारत जी जुबान होल्ड नीचे वाले कहेंगे जबड़े हम। में है। तो नॉर्मल सी में जो आप जुबान होती है ना, ये इन तमाम दांतों को अंदर से उनसे टच होती है, मिली हुई होती है अंदर से है ना। ये वाला जबड़ा है तो जुबान इन पूरे दांतों के साथ मिली हुई होगी। तो ये जो ज़वाहिक है, ज़वाहिक ये ज़वाहिक, ये
इतनी जुबान, ये कहलाएगा फ्रंट ऑफ द टंग, और इसको हमारे तजवीज़ में लिखा हुआ है तरफे लिसान, तरफे लिसान, ठीक है ना। हाँ जी हजरत। कितने हिस्से आ गए? दो। एक क्या है? नो की ज़बान, वन की नोक, हाँ जुबान की नोक। दूसरा क्या है? फ्रंट ऑफ द तरफे लिसान, तरफे लिसान, जुबान का अगला हिस्सा। और तीसरा है मिडल ऑफ द टंग। अब है ना कुछ हमने अरबी में लिखा है, उसको क्या लिखे? मिडल ऑफ द टंग, वस्ते लिसान, वस्त लिसान। पहले ठीक है ना? क्या लिखेंगे? हैं? तरफे लिसान, तरफे पहले वो ये जो नोक है, नोक के लिसान कह सकते हैं, जबान की नोक, उसको क्या लिखेंगे? नोक के उर्दू लिसान, में, अरबिक, अरबिक में, हाँ, हाँ वहां पर तो लिखा हुआ नहीं है, बोल सकते हैं लेकिन तजवीज़ में क्या बोलेंगे मैं देख लूंगा इसे, चलो ठीक है। मैं इसको बोल, हाँ फिलहाल हम जबान की नोक, बिल्कुल ये भी नोक है, ये भी नोक है। ये नोक के लिसान कह सकते हैं अभी, रअसुल लिसान कहेंगे इसको, रासुल लिसान। रअसुल लिसान, ठीक है ना। रास क्या मतलब है? रासुल लिसान, हाँ रास तो टिप को भी कहते हैं ना, अच्छा, रास। हेड को भी कहते हैं। जैसे रासुल इब्रा, रासुल अदनाई इब्रा। लिसान मत कहेंगे, हाँ अदनाई कहेंगे? लिसान, क्या कहेंगे? अदना। ना ना ना, इसे कहते हैं रासुल इब्रा, जुबान की है ना, सुई की नोक, ठीक है ना। अच्छा, हाँ सुई की नोक, तो ऐसे कहेंगे हम। सिरा, हाँ, हाँ तो रासुल लिसान, तरफुल लिसान, वस्तुल लिसान, ठीक है ना। जी और ठीक है। तीसरा है खल्फुल लिसान, बैक ऑफ द टंग, खल्फुल लिसान, पिछला हिस्सा, लिसान। ठीक है ना। जी। कितने हो गए? चार। चार। और पांचवा है अक्साए लिसान, एंड ऑफ द टंग, अक्साई एंड ऑफ द, टंग, टंग, एंड ऑफ द टंग। कितने हिस्से हो गए? 5। 5 हिस्से, 5 हिस्से। अच्छा, और एक है हाफे लिसान, हाफे लिसान, हाफे लिसान। आपको रिकॉग्नाइज हो गया ना ये? जी जी, एक हो गया रासुल लिसान, टिप ऑफ द, रासुल लिसान, टिप ऑफ द टंग। दूसरा हो गया तरफुल तरफुल लिसान, लिसान, तरफुल फ्रंट ऑफ द लिसान, टंग। फ्रंट, तीसरा हो गया वस्तुल लिसान, वस्तुल मिडिल ऑफ द लिसान, टंग, है ना। हाँ, चौथा हो गया खल्फुल लिसान, खल्फुल बैक ऑफ द लिसान, टंग। तरफुल लिसान, और पांचवा हो गया अक्सा, अक्साई लिसान। अक्सल लिसान, अक्साई लिसान, हाँ एंड एंड ऑफ द टंग, ठीक है। हम्म। हाँ तवज्जो रखिए, तवज्जो रखिए, ये बहुत, अब बैक ऑफ द टंग और एंड ऑफ द टंग में क्या फर्क है? हाँ फर्क है। है। ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको? जी 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 मेरा हाथ दिख रहा है ना? जी जी। जी हजरत, ये जो सिरा है, ये सिरा, ये सिरा, सिर्फ ये सिरा, हाँ ये दंदर बना चाहिए, दंदर, हाँ हाँ, इसको हम कहेंगे टिप, ठीक है ना। ठीक। तो और इस पूरे हिस्से को, ये इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इसको हम हाँ। बोलेंगे तरफ लिसान, फ्रंट, ठीक है ना। हाँ, ठीक। सही, और ये मान लीजिए ये हिस्सा, हाँ, इसे हम कहेंगे वस्त, वस्तुल लिसान, ठीक है ना। वस्त लिसान। हाँ उसके बाद ये वाला हिस्सा, ये पूरा, हाँ, इसको हम कहेंगे खल्फ, बैक। खल, हाँ फिर ये जो दंदर है ना इधर, ये किनारा, ये हाँ हाँ थ्रोट से, जहां से ये एंड होगा और थ्रोट शुरू होगा, हाँ, इसको हम कहेंगे अक्साए लिसान, अक्साई लिसान, एंड ऑफ द टंग। अब इसको एंड तो नहीं कहेंगे, इसको बैक कहेंगे ना। हाँ हाँ, बात सही, समझ रहे हैं हजरत? ठीक जी ठीक। जी जी जी, असल में ये 5 जगह मखारिज के हैं, यहां से हुरूफ निकलते हैं, इसलिए मैं 5 नामों को बोलता हूँ, वरना जरूरी नहीं है। वरना अच्छा, हम जम कर, हम बैक और एंड को एक को कहते, हम फ्रंट और टिप को एक कहते, मगर ये 5 जगह हैं मखारिज की, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। जी सही, हजरत, जी हाँ। जी। ये 5 जगह मखारिज की हैं, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको। जैसे अच्छा। अक्सर लिसान से निकलता है।
शाबाश जिगर, ये क्या है? ये टिप ऑफ द टंग है, रासुल लिसान, रासुल रासुल लिसान, लिसान। और ये क्या है? ये तरफुल लिसान, तरफुल लिसान, हाँ सानी अशर, खामिस व इशरून, जी हजरत। हाँ बोलते नहीं है, सानी अशर, सानी अशर। हाँ तो ये क्या है जिगर? ये है वस्तुल लिसान, खलफुल लिसान, वस्तुल और ये लिसान, क्या है? ये दिखाई नहीं देता है। खल्फुल लिसान, खल्फुल लिसान। दिख गया ना? मैं आपका दिख हाथ रहा हूँ आधा ही आपको? दिख मैं रहा दिख है। रहा हूँ क्या? नहीं दिख रहा है। आपने जो अभी हाथ दिखाया था वो आधा ही था। ये कैसे? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये कैसे होगा? अब बस ठीक है हजरत, बस ठीक है। इस वक्त पूरे स्क्रीन पे नहीं आएंगे आप, हैं? पूरे स्क्रीन पे आएंगे ना। ओ असल तो मसला है सच्ची। ये आप दिख रहा है? जी बिल्कुल पूरा दिख रहा है। हाँ सही बात है। तो ये क्या है? ये शाबाश, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पूरे स्क्रीन पर आएंगे जो वस्तुल बेहतर होगा। लिसान, तो मैं हाथ को ये डाउनलोड करना है ना, फिर हाथ को, अच्छा फिर मुझे हाथ को डाउनलोड करना है, फिर दिखाना है। तो मैं ये मान लीजिए, आप ये तस्वीर आपने जुबान की है ना, जुबान तस्वीर की है। हाँ ठीक ठीक। हाँ तो ये है, ये आप ये जो रासुल लिसान, और ये वाला हिस्सा ये तरफुल लिसान, लिसान, और ये वाला हिस्सा वस्तुल लिसान, वस्तुल और लिसान, ये वाला हिस्सा खल्फुल लिसान, और ये वाला खल्फुल हिस्सा लिसान, अक्सर लिसान। ठीक है ना? ठीक। यक्सा लिसान। हाँ अब जो जुबान है ज़वाहिक से आगे तक तरफ लिसान है, हाँ, जो ये तरफ लिसान है ये छोड़ दीजिए। अब यहां से आप जुबान को और दो हिस्से कीजिए, ये वाला हिस्सा अलग, ये वाला हिस्सा अलग। ठीक है ना? हाँ, इस वाले हिस्से को हाफा लिसान कहते हैं, हाफा लिसान, हाफतुल लिसान। इस वाले को भी हाफतुल लिसान कहते हैं। हाँ, ठीक है ना? ठीक। इसका मतलब है कि ये ज़वाहिक है, ये है ना ज़वाहिक। हाँ, सही। हाँ ये ज़वाहिक है, हाँ, नीचे साइड है। तो जुबान इन ज़वाहिक से पीछे तक जो ये दांत है उर्म डाढ़, ठीक है ना? हाँ, सही। तो जो डाढ़ों के साथ, अच्छा ये ज़वाहिक है, ज़वाहिक से डाढ़ शुरू होते हैं, यानी तवाहिन और नवाजिज, ये 4 दांत हैं, और इसके साथ ज़ाहिका भी है, ये 5 दांत हैं। इन 5 दांतों के मजमूए का एक मुश्तरक नाम है, वो है डाढ़। उसको हम कहते हैं अजरास। दाढ़। अजरास एक तो अलग अलग नाम है, इन 5 दांतों के मजमूए का एक नाम है, उसे कहते हैं अजरास। क्या कहते हैं? किन पांच का हुजूर आप कह रहे हैं? और महज उर्म, अर्म, हाँ जिनको डाढ़ कहते हैं। हाँ, तो डाढ़ ज़वाहिक से नवाजिज तक, ज़वाहिक तो ज़ाहिका 1 दांत, और तवाहिन 3, और नाजिजा 1, गए ना 5 दांत। हाँ, हाँ, ये 5 दांत इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक। है ना? हाँ, हाँ, युमनिज वन्निज उर्म, और इन्हीं को उर्दू में हम डाढ़ कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, हाँ, सही। हाँ ये डाढ़ मान लीजिए यहां से यहाँ तक, ये आपको नजर आ रही है मेरी उंगली? हाँ, हाँ, हाँ जी। यहाँ मान लीजिए ज़ाहिका है, यहाँ तवाहिन 3 दांत है, और यहाँ नाजिजा है। ये ज़ाहिका, तवाहिन 3 दांत और नाजिजा, ये 5 दांत हो गए ना? जी। जी। ये 5 दांत इधर भी है, नीचे ऊपर 10, और इधर भी ऊपर नीचे 10 हैं। इन 5 दांतों के साथ जो जुबान का हिस्सा मिला हुआ होगा उसे कहते हैं हाफे लिसान। उसे क्या कहते हैं? हाफे लिसान। हाफे लिसान। आज नेटवर्क में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, बीच बीच में ये कट हो रहा है।
जी मैं कहता हूं जो कहते हैं नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही ना? जी हजरत मुझे आ रही है। बीच में कट हो रहा है। जी अल्लाह। हाँ, तो जो ये 5 दांत हैं, 5 दांत, 5 दांतों के साथ जो जुबान का हिस्सा मिला होता है उसे कहते हैं हम हाफे लिसान। क्या कहते हैं? हाफिल लिसान। हाफिल लिसान। हाफे लिसान, बिल्कुल। और इसलिए मैंने कहा था ये जुबान है नीचे वाले जबड़े में, ठीक है ना? जुबान नीचे वाले जबड़े में है ना? जी हजरत। तो हाँ। आपको क्या लगता है, अब जुबान जो है वो नीचे वाले दांतों के साथ मिली हुई होगी ना? जी हजरत। जी तो जी जुबान का जो हिस्सा जी। जुबान का जो हिस्सा दाढ़ों के साथ मिला होगा उसे कहते हैं हाफे लिसान, उसे कहते हैं हाफिल हाफिल लिसान। लिसान। चाहे दाईं तरफ मिल जाए चाहे बाईं तरफ मिल जाए, इधर भी हाफे लिसान है, इधर भी हाफे लिसान है, ठीक है ना? जी हजरत। जी जी अच्छा, अगर जो जुबान अगले दांतों के साथ मिलेगी उसको हाफे लिसान कहेंगे? नहीं। हाँ, उसे हाफे लिसान नहीं कहेंगे। तो दाएं वाली जुबान के हिस्से को या बाएं वाली जुबान के हिस्से को हाफे लिसान कहेंगे, ठीक है ना? जी जी। बस आप इतना ही याद रखें और कल मैं इंशाल्लाह ये सुनूंगा। हजरत इंशाअल्लाह। मेहरबानी करके आज का ये अपलोड कर दें प्लीज, ये वरना हमें दोबारा से सुनना जरूरी है। जी जिगर, मुझे तो यहाँ अपने भाई बहन नहीं है तो पुलिस कहाँ से होगी? हजरत मेहरबानी, क्या बोलते हैं? ठीक है जिगर मेरा, मैं इसको अपलोड करता हूँ। जी जी शुक्रिया। तो इजाजत हो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।